ঋতুৰাজ টাইম 8 দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ 3,76,000 লোকে নতুনকৈ লাভ কৰিব চৰকাৰী বিনামূলীয়া ঘৰ। এই কথা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কিছু সময় পূৰ্বে কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। দুচকীয়া বাহন থকা লোকসকলেও লাভ কৰিব ঘৰ। সমান্তৰালকৈ মাহিলী 15,000তকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালেও এই ঘৰ লাভ কৰিব আৰু সমান্তৰালকৈ যিসকল কৃষকৰ 5 একৰ পৰ্যন্ত ভূমি আছে সেই সকল লোকেও এই ঘৰ লাভ কৰিব। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম 8 দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কৰিছে ডাঙৰ মন্তব্য। শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ 3,76,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। সকলোকে প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া ঘৰ। কেঁচা ঘৰত কোনো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক থাকিব নোৱাৰিব। এজনো দুখীয়া মানুহ কেঁচা ঘৰত থাকিব নোৱাৰিব। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে। প্ৰতি মাহে 15,000 টকা উপাৰ্জন থাকিলেও সেই লোকসকলে ঘৰ লাভ কৰিব। দুচকীয়া বাহন থকা লোকসকলেও বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিব। 5 একৰ ভূমি থকা কৃষকেও বিনামূলীয়া ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া পকী ঘৰ। কেঁচা ঘৰত থকা প্ৰতিগৰাকী লোকে লাভ কৰিব, কোনো লোকে বাদ পৰি নাযাব। জনতাৰ সেৱা আমাৰ বাবে পূজাতকৈ কম নহয় বুলি উল্লেখ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম 8 দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কৰিছে মন্তব্য। শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ 3,76,000 লোকে নতুনকৈ লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। এই কথা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। সকলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে বিনামূলীয়া ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এজনো দুখীয়া মানুহ কেঁচা ঘৰত থাকিব নালাগে। প্ৰতিগৰাকীৰ বাবে বিনামূলীয়া পকী ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব মোদী চৰকাৰে। প্ৰতি মাহে 15,000 টকা উপাৰ্জন কৰিলেও লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। সমান্তৰালকৈ যদিহে ঘৰত দুচকীয়া বাহন আছে, দুচকীয়া বাহন থাকিলেও আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। আৰু সমান্তৰালকৈ 5 একৰ পৰ্যন্ত 5 বিঘা পৰ্যন্ত ভূমি যদিহে আছে তেনেহ'লে সেইসকল লোকেও পকী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। জনতাৰ সেৱা আমাৰ বাবে পূজাতকৈ কম নহয়। জনতাৰ সেৱা কৰিবৰ বাবে আমি চৰকাৰ চলাই আছোঁ বুলি কৰিলে মন্তব্য। সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কৰিছে এটা ডাঙৰ মন্তব্য। নতুনকৈ 3,76,000 লোকে চৰকাৰী পকী ঘৰ লাভ কৰিব বুলি এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ সন্মুখত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে ঘোষণা। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম 8 দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা 15,000 টকা মাহিলী উপাৰ্জন কৰা প্ৰতিগৰাকী পৰিয়ালেও লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। আৰু সমান্তৰালকৈ যদিহে ঘৰত আছে দুচকীয়া বাহন থকা লোকসকলো চৰকাৰী পকী ঘৰৰ বাবে উপযুক্ত বিবেচিত হ'ব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ মন্তব্য আহি পৰিব টাইম 8 দৰ্শকসকলক সেই মন্তব্য শুনাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কলাক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অসম চৰকাৰৰ অনুষ্ঠান আছিল আৰু এই অনুষ্ঠানত 50,000 লোকে গৃহ প্ৰৱেশ কৰিছে, ঘৰৰ চাবি পাইছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমত আহি উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু সেই অনুষ্ঠানতেই ভাষণ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুনকৈ 3,76,000 চৰকাৰী পকী ঘৰ পুনৰ ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে এই ঘৰ লাভ কৰিব। এজন লোকো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এজন লোকো যাতে কেঁচা ঘৰত থাকিব নালাগে তাৰ বাবে সুনিশ্চিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৰ্মৰাজিকো এতিয়া ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ। यहाँ बहनें मकान बनाएंगी। अच्छा, ये मकान भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महिलाओं के नाम पर ही होते हैं, केवल पतिदेव के नाम पर नहीं होते।
बहनों के नाम तो होते हैं, बहनों के नाम के मकान बनाएगी भी बहनें। और इसलिए मैंने अभी जया प्रसाद जी को बुलाया कि इसमें तो असम को कुछ और मिलना चाहिए, तो हमारे पास इनोवेशन का फंड है इन बहनों को मजबूती देने के लिए। उस फंड से भी हम इनोवेशन के लिए आसाम को मदद की बात नहीं करूंगा, हम उन बहनों को सहयोग करेंगे। अभी दादा कह रहे थे कि 3,76,000 मकान बचे हैं। मैं हिसाब लगा के आया हूं दादा, आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पिछली बार 2 बार असम को मकान दिए। पहली बार 3 सितंबर को 2024 में 1,71,000 मकान। लेकिन बाद में मैंने हिसाब किताब देखा और देखा असम तो जैसे ही मकान देते हैं स्वीकृत कर देता है, बना देता है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए हमने उसी साल 27 जनवरी को 2025 में 3,88,000 मकान और आसाम को दे दिए। लेकिन आप भी तेजी से काम कर रहे हैं, आपने वो मकान भी स्वीकृत कर दिए, बना दिए। और अब 2018 के आवास प्लस की सूची में जो पात्र हितग्राही, मतलब जिन भाइयों और बहनों को मकान मिलना चाहिए, उनकी संख्या है 3,76,000। अगर ये 3,76,000 मकान और स्वीकृत हो जाए तो जितने भी पात्र हितग्राही है 2018 की आवास प्लस की सूची के, सबको मकान मिल जाएंगे। और इसलिए दादा आज पूरी तैयारी से हम आए, चिट्ठी लेके आपने मांगा और हमने दिया, क्योंकि आपका अधिकार है, इतना अच्छा काम करते हैं। ये पत्र मैं लाया हूं, 3,76,000 मकान तत्काल प्रभाव से असम के बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। ये मैं दादा को भेंट कर रहा हूं। अब जो अच्छा काम करे उसको तो देना ही पड़ेगा ना, और यहां रुकने वाले नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि फिर से सर्वे हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बहनों और भाइयों कि एक भी गरीब भाई बहन बिना मकान के नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। बोलिए, सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान बनना चाहिए, कोई कच्चे घर में ना रहे। और इसलिए इस बार व्यापक पैमाने पर सर्वे चल रहा है। फिर तय कर लिया कि ये मकान तो पूरे हो गए। कई लोग मिलते थे, हेमंता दा ने भी बताया, रंजीत दा ने बताया कि अभी तो कई लोग रह गए, 2018 की सूची से नाम छूट गए। कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन ने जानबूझ के भी कई नाम छोड़ दिए होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। और फिर से सर्वे चल रहा है, और सर्वे में इस बार 3 तरह की छूट और दी है। नंबर 1, पहले जिनकी आमदनी इनकम 10,000 रुपया महीना से ज्यादा होती थी उनको मकान नहीं देते थे, लेकिन अब 10,000 रुपया महीना तो हमारी लखपति दीदी कमा ही रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनाओ, लखपति दीदी बनाओ, और दूसरी तरफ कहते थे 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई, इनकम हो गई तो मकान देंगे ही नहीं। तो कई दीदियां कहेंगी काय को लखपति बने, मकान नहीं मिलेगा। इसलिए दीदियों अब तय कर लिया है कि 15,000 रुपया महीना भी इनकम होगी तो भी मकान दिए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। दूसरी चीज और की दादा, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, उनको मकान नहीं देते थे। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो 2 व्हीलर पे जाता है, क्या उसको मकान नहीं दें? अब तय कर दिया है बहनों भाइयों, अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक वो भी घर में होगी तो भी मकान दिए जाएंगे। और तीसरी चीज और ना, जो छोटे किसान हैं, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन, अब वो भी तो दिनों रात मेहनत करते हैं खेत में, दुनिया का पेट भरते हैं, और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों को भी मकान दिए जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक इनोवेशन का फंड है, यहां बहनें मकान बनाएंगी।
अच्छा, ये मकान भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महिलाओं के नाम पर ही होते हैं, केवल पतिदेव के नाम तो नहीं होते, बहनों के नाम तो होते हैं। बहनों के नाम के मकान बनाएगी भी बहनें। और इसलिए मैंने अभी जया प्रसाद जी को बुलाया कि इसमें तो असम को कुछ और मिलना चाहिए, तो हमारे पास इनोवेशन का फंड है इन बहनों को मजबूती देने के लिए। उस फंड से भी हम इनोवेशन के लिए आसाम को मदद की बात नहीं करूंगा, हम उन बहनों को सहयोग करेंगे। अभी दादा कह रहे थे कि 3,76,000 मकान बचे हैं। मैं हिसाब लगा के आया हूं दादा। आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पिछली बार 2 बार असम को मकान दिए। पहली बार 3 सितंबर को 2024 में 1,71,000 मकान। लेकिन बाद में मैंने हिसाब किताब देखा और देखा असम तो जैसे ही मकान देते हैं स्वीकृत कर देता है, बना देता है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए हमने उसी साल 27 जनवरी को 2025 में 3,88,000 मकान और आसाम को दे दिए। लेकिन आप भी तेजी से काम कर रहे हैं। आपने वो मकान भी स्वीकृत कर दिए, बना दिए। और अब 2018 के आवास प्लस की सूची में जो पात्र हितग्राही, मतलब जिन भाइयों और बहनों को मकान मिलना चाहिए, उनकी संख्या है 3,76,000। अगर ये 3,76,000 मकान और स्वीकृत हो जाए तो जितने भी पात्र हितग्राही है 2018 की आवास प्लस की सूची के, सबको मकान मिल जाएंगे। और इसलिए दादा आज पूरी तैयारी से हम आए, चिट्ठी लेके आपने मांगा और हमने दिया, क्योंकि आपका अधिकार है, इतना अच्छा काम करते हैं। ये पत्र मैं लाया हूं, 3,76,000 मकान तत्काल प्रभाव से असम के बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। ये मैं दादा को भेंट कर